हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबडी स्टडिंग एंड preparing yourself for board exams. So today we are meeting with paper number 7 of our mock test series for class 12 maths. In this video again, we'll see again the detailed solutions of each and every questions. Clear questions solutions मैं आपको देने वाली हूँ in which and this is preparation for our 80 by 80 score. हमें फुल मार्क्स स्कोर करने हैं, जिसको जो फुल नहीं कर पा रहे हैं एटलीस्ट जो अभी तक पास नहीं हुए हैं एंड ऑल इन एग्जाम्स, तो उनको बहुत ही बेहतर स्कोर उनका आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप मेरे साथ करने वाले हैं, आई होप आप लोगों ने पहले का जो 6 मैंने पेपर्स आपको दिए हैं यू हैव सॉल्व 6, नहीं तो एटलीस्ट यू हैव डन 3 एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स 4, 5 स्लोली इन इजी मैनर। फटाफट से बढ़ते हैं इस पेपर नंबर 7 की तरफ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम हमेशा शुरू करते हैं विद आवर मोटिवेशनल थॉट का वीडियो, स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। सो जो लोगों को लगता है ना कि हम ये नहीं कर सकते, हमसे क्वेश्चन नहीं होगा, हमसे नहीं कर, सो दैट इज सेल्फ डाउट। सो स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ, वर्क हार्ड, मेक इट हैपन, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो टुडे विद दिस पॉजिटिव थॉट लेट्स स्टार्ट सेक्शन A to question number 1. You are given vector A and he is given vector B also. He is asking for the vector A of projection of vector A or vector B. This everybody knows कि projection भाई कैसे निकालना है, vector A and then vector B cap. This is what you need to find out. You need to take the dot product of both the vectors and in the denominator you need to take your magnitude of vector B. ये बहुत सा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन की प्रोजेक्शन कैसे निकालना है, ये मैंने आपको बहुत बार पिछले वाली 6 पेपर्स में हमने बहुत डिटेल में सब कुछ किया हुआ है। So how you find out dot product? You need to multiply just your I component with I component and J component with a J component and K component with a K component. This will be the dot product. और नीचे अगर आप करेंगे it will be 4 plus 36 plus 9. And how much you are getting from here? You'll get 20 minus 12 divided by how much? नीचे आ जाएगा आपके पास कितना 49 and this will be 8 divided by 7. And 8 divided by 7 will be the answer. आप चूज कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन B is the correct for question number 1. I hope it is clear to everyone. Let's move to the question number 2 now. Again very simple question. Total number of functions बताने हैं आपने कहां से कहां। अगर आप देखें number of set A में आपके पास you have 4 elements, in set B you have number of elements, how many are there? This is number of 3. So number of functions, how to find out total number of functions? Total number of functions आप कैसे निकालते हैं बताइए फटाफट से। If you have set A, if you have set B, and how to find out number of functions in from A to B? It will be what? It is nothing but number of elements in set B to the power number of elements in set A. This is the formula for how to find out total number of functions. Functions की बात की, relations की बात नहीं है। Just remember this. सिर्फ function पूछा, उसने relation नहीं पूछा. So the answer will be 3 to the power 4, which is equals to 81. And 81, which option is correct? Option B is the correct option for question number 2. I hope it is all clear to everyone. So move on to question number 3 फटाफट से। area bounded by y is equals to this. ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, this is the function, और कहां से 0 से लेके। How will you find out this? सबसे पहले तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जरा निकाल लेते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, how will you find? If I am not wrong, the graph of this question, आपको ग्राफ बनाना नहीं आता है, आप क्या करेंगे, आप वैल्यूज पुट करके देखेंगे और फिर आप ग्राफ बनाएंगे, और ये मेरे हिसाब से कुछ इस तरीके का ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, दिस विल बी द पॉइंट एंड दिस वन। अब उसने क्या दिया है, y is this one and y is equals to 0 also. So what you need to take, कि आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए to find out your intersection point first of all. If I put them equals to 0, I will get x square minus 2x minus 3 will be 0. And if I factorize that, it will be x minus 3 of x plus 1 equals to 0, and you will get x equals to 3 and x equals to minus 1. So these are the two intersection point. और आप देख लीजिए कहां आने वाले हैं, ये एक आएगा -1 इधर आएगा and 3 will be here. Clear to all? और ये हो जाएगा कितना, y 0 दिया ही हुआ है तो it will be 0, इधर भी 0, इधर भी 0। इधर की बात कर लेते हैं, this point is lying on y axis, तो x यहाँ पे हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा फटाफट से बता दीजिए। यहाँ पे x को आपने अगर 0 रख दिया इस वाले में, तो y का वैल्यू कितना देगा, it will give me 3. Now we need to find out area bounded by 0 से लेके यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे, आप 0 से बोला है, 0 से लेके तो आप कहां से कहां निकालेंगे, या तो इधर से इधर निकाल लीजिए या इधर से इधर निकाल लीजिए। इफ यू गो 0 to -1, वो तो नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, हम पूरा निकाल लेते हैं, -1 से 3 पे निकाल लेते हैं, -1 से 3 पे।
-1 से 3 पे अगर आप निकालते हो यहाँ से लेके यहाँ तक, यू विल हैव -1 to 3, ये पोर्शन आपका पूरा कवर हो जाएगा -1 to 3 में। आपको ये निकालना है ना, सो दिस विल बी एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रल -1 to 3, और किसका एरिया निकलेगा, वी आर डीलिंग विद द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा ये, एंड दिस विल बी y ऑफ dx, और y का वैल्यू आपको क्लियरली दे रखा है, दिस इज -1 to 3, you will have minus of x square plus 2x plus 3, and you just need to simplify your question. You will get minus of, if I simplify it, this you can do very easily. आप करिए फटाफट से, मेरा मत देखिए। सॉरी, दिस इज x square by 2. कैलकुलेशंस यू प्लीज डू योरसेल्फ, क्योंकि बाकी चीजें आप देख सकते हैं, बाकी कैलकुलेशंस तो आपको खुद से करनी चाहिए। You will get what? You will get from here minus of 9 plus 9, then plus 9, and minus of 1 by 3 plus 1 minus 3, and you will get from here, this will cancel out, this will be 32 by 3. So have you this option? Yes, we have this option, which is option number B, and option number B is the correct answer for question number 3. If you have any doubt, any query, you can tell me in the comment section. कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। And if you are liking this video, please share the video with your friends. उनको बताइए कि यहाँ से भी mock test पेपर करिए, so that you can prepare yourself for your board exams. वीडियो को लाइक कर दे, चलिए सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और फटाफट से जो न्यू है चैनल पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले मैं बता दूं, मैंने पहले वाली वीडियोस में भी आपको बताया था कि जस्ट डोंट डू दीज पेपर्स, दिस mock test papers in your rough copy or rough notebook. Please don't do that. Make a separate register. Make a separate register, please, for these mock tests. Please make a separate register. उसमें आप करते जाइए mock पेपर नंबर 1 सारा सोल्यूशन, पेपर नंबर 2 सारा सोल्यूशन, पेपर नंबर 3 all the solutions. उससे क्या होगा बेटा, उससे ये होगा कि when you are going for a board exams, you have just one register to revise everything, because in that this chapter you have clearly mentioned all the topics, उसके क्या क्या questions आते हैं, सब कुछ हमने किया है इसमें. So that will be one of the best thing for your रिविजन पार्ट. आपको पूरा एनसीईआरटी पार्ट 1 पार्ट 2 या कोई और नोटबुक या आर.डी. शर्मा देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा. यू हैव लॉट्स ऑफ एम्पल ऑफ क्वेश्चंस इन मॉक टेस्ट पेपर्स. ठीक है, इसमें आपके नॉट ओनली यू आर रिवाइजिंग द क्वेश्चन, यू आर रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स आल्सो. सो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी. सो प्लीज फॉलो दिस एडवाइस, दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. बहुत आपको इजीली आपको काम आने वाली है ये चीजें. ठीक है, चलिए अब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पूछा है आपने. इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ डेरिवेटिव होता है. उसने सीधा सीधे उसने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिख दिया है. उसका मतलब है वही कि आपको डेरिवेटिव निकालना. मतलब आपको दिया है साइन ऑफ cos of x square, you need to just find out its derivative, and everybody knows how to find out derivative. मैंने आपको कितनी बार बोला है कि जब इस तरह से दिया है तो you need to find out derivative of each and every function. अगर इसमें देखें, सबसे पहले पावर तो नहीं है, so no need to check power rule now. तो सबसे पहले शुरू करते हैं साइन से. साइन का डेरिवेटिव, हाउ वी चेंज डेरिवेटिव ऑफ साइन. साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस होता है बेटा. अब ये जो पूरी चीज है ये सब क्या है, पूरा किसका क्या है, साइन का एंगल है. तो नो नीड टू डू एनीथिंग इन दिस, जस्ट राइट दिस एज इट इज. कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है. फिर आएगा आपका चेन, जिसे हम चेन रूल बोलते हैं. नाउ अभी वी हैव डन डेरिवेटिव ऑफ साइन, नाउ वी फोकस ऑन द डेरिवेटिव ऑफ कॉस. नाउ कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट विल चेंज टू माइनस साइन. बट अगेन यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव प्लीज डोंट राइट 2x. यहाँ पे एंगल जो है वो का वही रहेगा. नाउ मल्टीप्लाई दो चीजों का हो चुका है, साइन का कॉस का. नाउ वी कम टू द एंगल एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विल बी 2x. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे इसको कैसे लिखते हैं, कॉस ऑफ माइनस साइन ऑफ 2x. बेटा जी ये बिल्कुल रॉन्ग है. कभी भी ऐसे 1 2 3 साथ में चेन रूल नहीं लगता है. चेन रूल है मतलब आपने पहले फंक्शन का लिखा, उसके बाद जितना भी फंक्शन बचता है आपका, यू नीड टू राइट दैट एज इट इज. कुछ नहीं करना आपने उसमें, आपको एक एक फंक्शन का सेपरेटली लेना है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. आई थिंक -2x sin x स्क्वायर एंड cos of cos x स्क्वायर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से, वरना बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत वीडियो लंबा होता जाएगा. अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. चलिए, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल, ये एंगल बना रहा है, ये बना रहा है और ये बना रहा है विद एक्स वाई जेड, आपको डायरेक्शन कोसाइंस बताने. एवरीबडी नोज कि क्या क्या होते हैं, दैट इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा. और अल्फा बीटा गामा होते हैं हमारे एंगल्स व्हिच आर मेड अप विद द एंगल विद द एक्सिस एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली. सो कॉस अल्फा इज गिवन टू मी कॉस ऑफ पाई बाय 2, एंड देन यू आर गिवन कॉस ऑफ 3 पाई बाय 4, एंड नेक्स्ट इज यू आर गिवन कॉस ऑफ पाई बाय 4. कॉस पाई बाय 4 का मतलब होता है 1 बाय रूट 2, और कॉस पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है, इट इज 0. तो पहला आएगा 0, लास्ट वाला आएगा 1 बाय 2.
अगर आप इसमें देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कौन सा हो सकता है, ये और ये हो सकता है। अब इसमें दूसरी बात, अब इसमें देखो, अगर सी में देखा, अगर देखो ये है उस तरीके एलिमिनेशन मेथड की जिसको नहीं भी आता। सपोज मेरे को ये दोनों वैल्यूज आती है, मुझे cos 3π/4 नहीं आता, ठीक है, सपोज मैंने मान लिया। देखो 3π/4 का मतलब क्या होगा आपके पास, इट इज वॉट, पाई माइनस π/4। पाई माइनस π/4 को आप कैसे लिख सकते हैं cos के साथ, दिस इज यू आर लाइंग इन विच क्वाड्रेंट, यू आर लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, इधर सेकंड में आता है, और सेकंड में cos क्या होता है, सेकंड में cos होता है बेटा नेगेटिव होता है। सो दिस इज माइनस ऑफ sin π/4, अगर इसका वैल्यू निकालेंगे दैट विल गिव मी माइनस ऑफ 1/√2, और सबके आगे तो प्लस माइनस लगेगा ही। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट और बी सी विल बी द करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट डेफिनेटली, ये वाला नहीं हो सकता। ठीक है, आ रही है बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डोमेन ऑफ द फंक्शन आपको बताना है कि कौन सा उसका आंसर होने वाला है, इस फंक्शन का डोमेन cos इनवर्स ऑफ 2x - 1। चलिए फंक्शन की बात बाद में करेंगे। अगर मैं नॉर्मली पूछूं cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, तो क्या होता है, इट इज फ्रॉम -1 से लेके 1 पे। ठीक है, मतलब जो हमारा x होगा, जो इसके साथ एंगल होगा, जो भी एंगल इसके साथ होगा, वो कहां से कहां लाई करेगा, दैट विल लाई ऑलवेज -1 to 1। ठीक है बात, क्योंकि उसने मेरे से बोला डोमेन ऑफ फंक्शन कहां से कहां लाई करने वाला है। बात समझ में आती है, चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस x। ठीक है, अब इस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, इसको इधर ले जाइए, सो +1, इसको इधर ले जाएंगे और इधर भी ले जाएंगे। सो लेसर देन इक्वल्स टू 2x, लेसर देन इक्वल्स टू 2, ये देगा मुझे 0, लेस देन इक्वल्स टू 2x, लेस देन इक्वल्स टू 2, और इसको भी इधर ले जाइए, इट विल गिव मी 0, लेसर देन इक्वल्स टू x, लेसर देन इक्वल्स टू 1। तो क्या आंसर आया, x कहां से कहां लाई कर रहा है, इट इज बिलोंगिंग फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेके 1 पे। सो व्हिच ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ फटाफट से। tan ऑफ 2 इनवर्स, इफ यू सिंप्लीफाई दिस, tan इनवर्स ऑफ 2 ऑफ sin ऑफ, देखिए आप अगर हर कोई क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके करेंगे ना, सो देयर आर लेस चांसेस कि आपका क्वेश्चन गलत होगा। ऑप्शन तुक्के नहीं मारने वहां पे, आपने ऐसे नहीं कि बस ऐसे देखा और आपने फिट कर दिया, ऐसे नहीं होता है। आप ऐसे करने जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके गलत होंगे। 2, सबसे पहले लास्ट टर्म पे आते हैं, जब इस तरह क्वेश्चन है, cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2 कहां पे होता है, अगर आप मुझे बताइए। इट इज ऑन द 30 डिग्री, सो 30 डिग्री वी कैन राइट π/6, एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस विल बी π/3। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद sin इनवर्स ऑफ 2 of sin of π/3। What is sin of π/3? Sin π/3 मतलब 60 degree, 2 into what is sin 60? That is √3/2. Now again we can simplify. We are left with just tan inverse of √3. और tan inverse √3 बता दीजिए फटाफट कहाँ पे होता है, 60 डिग्री पे, and 60 degree is nothing but π/3. So option number A will be the correct option for question number 7. अगर आप नॉर्मली करेंगे ना तो फिर ये गलत होगा। ठीक है, मतलब देख के अगर आप बोलते हो कि देख के कुछ नहीं होता, मैथ में देख के कुछ नहीं होता, आपको करना पड़ेगा। अगर आपने देख के ही करना मीन्स यू आर नॉट दैट मच लाइक फोकस्ड टुवर्ड्स योर स्टडीज। चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आपको रिलेशन दिया है 1 2 3 पे, रिलेशन इज गिवन टू मी 1, 2 एंड 2, 3। अगर आप इसमें देखिए, इसमें कोई डबलेट तो नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अगर इसमें देखें सिमेट्री है, 1 2 है तो 2 1 भी है, सिमेट्री है तो नॉट सिमेट्रिकल, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है क्योंकि डबलेट तो नहीं है। नन ऑफ दिस की बात नहीं करते हैं क्योंकि दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए आपके पास डबलेट होना चाहिए, यू शुड हैव 1 1, यू शुड हैव 2 2 एंड 3 3 एज वेल एज। ठीक है, तो ये तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस फंक्शन और दिस रिलेशन इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। सो नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 9 नाउ, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए ये क्वेश्चन सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, इसको हम बोलते हैं, अगर किन लोगों को नहीं पता है, इसको हम बोलते हैं लैग्रांज आइडेंटिटी। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को ये लैग्रांज आइडेंटिटी नहीं आती होगी वो सिंप्लीफाई करेंगे, जिसको आती होगी वो डायरेक्टली लगा के फटाफट से बढ़ जाएगा आगे और अपना थोड़ा सा टाइम बचा लेगा। तो क्या कहती है लैग्रांज आइडेंटिटी, वो कहती है कि अगर दो वेक्टर्स का आप क्रॉस लेते हो विद स्क्वायर और उन्हीं का आप डॉट भी लेते हो विद स्क्वायर, तो उसका आंसर सीधा सीधा आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये सीधे सीधा आंसर आता है और आप देख लो इसमें से कौन सा ट्रू है। ऑप्शन बी विल बी द ट्रू फॉर क्वेश्चन नंबर 9। आई होप इट इज क्लियर। सो याद रखिए लैग्रांज आइडेंटिटी, ये क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी कई बार यूज भी होगी। आई थिंक हमने पीछे जो एक पेपर किया था उसमें भी हमने ये यूज किया था कहीं ना कहीं पे। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमें दिया हुआ है यहाँ पे, वी आर गिवन that A and B are two independent events such that probability of A is this and probability of B is this. We need to find probability of A dash intersection B dash. इसका मतलब as the events are independent, so we can write probability of A dash into probability of B dash. This is condition of independency, but we don't have A dash. So what we need to just probability of, we can write A plus A dash is 1.
So likewise we can say probability of A dash will be 1 minus probability of A into 1 minus probability of B. और हमें A और B तो दिया हुआ है, that will be 1 by 3, 1 minus 1 by 3 and this is 1 minus 1 by 4. So what we are left with, this is 2 by 3 into this is how much, this is 3 by 4, cancel out, this is 1 by 2 and the option B will be the correct option for question number 10. I hope it is clear. Very simple question. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फटाफट से 11 की तरफ. For the curve, हमें एक कर्व दिया हुआ है, this is y is equals to, if x increases at this rate, now y is equals to 5x minus 2x cube. Now what we are given, x increases at this rate, x increase हो रहा है, इसका मतलब what we are given, we are given dx by dt, कितने पे, 2 units per second, ठीक है. Now slope of curve is changing, slope is changing, slope का मतलब क्या होता है, slope का मतलब होता है हमारा derivative, dy by dx, dy by dx is what, it is changing at what, at x equals to 3, ये चेंज हो रहा है. तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है क्या, निकालना है रेट, निकालना है at which, sorry, we need to find out, sorry, the rate at which slope of the curve is changing, मतलब we need to find out this dy by dx at x equals to 3. निकाल लेते हैं फटाफट से, फंक्शन तो दे ही रखा है, what will be that, dy by dx equals to 5 का क्या हो जाएगा, 5 माइनस इसका क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर, ठीक है. ये तो हो गया हमारे पास ये. अब उसने क्या बोला हमको, उसने बोला है कि हमें जो डेरिवेटिव निकालना है, दिस इज dy by dx, हमें निकालना है at which rate it is changing, slope at which rate it is changing. तो ये तो निकालना है, साथ में क्या निकलेगा, साथ में ये निकलेगा इसका d by dt, क्योंकि हमें निकालना है रेट ऑफ स्लोप ऑफ कर्व. स्लोप तो ऑलरेडी होता है dy by dx, मतलब दोबारा से उसका लेना है. तो व्हाट इट विल गिव मी, अब dy by dt करेंगे, क्यों, क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो दिस विल गिव मी व्हाट, ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस 12x इंटू x का डेरिवेटिव विल गिव मी dx by dt, बिकॉज हियर वी आर नॉट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वो हमने सिर्फ यहाँ पे किया था, जब यहाँ पे आया तो हमने dt के रिस्पेक्ट में किया है. तो dx by dt हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड यू पुट द वैल्यूज, माइनस 12 इंटू 3 और dx by dt का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस 72 यूनिट्स पर सेकेंड. तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके पास, यू हैव द ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. आई होप इट इज क्लियर. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ फटाफट से. फंक्शन x टू द पावर n, वो बोल रहे हैं कौन सा फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये कॉन्टिन्यूअस है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, लिमिट एग्जिस्ट करती है बट f ऑफ n के इक्वल नहीं है और नन ऑफ दीज है. क्या करेंगे भाई, फंक्शन की क्वांटिटी हम कैसे चेक करते हैं, हम चेक करते हैं किस पॉइंट पे, x इक्वल टू n पे चेक करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू n, fx शुड बी इक्वल टू f ऑफ n, ये होता है. तो अगर हम यहाँ पे करें तो वील हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू n और फंक्शन हमें दिया है x टू द पावर n, डायरेक्टली पुट करिए लिमिट को, यू विल हैव n टू द पावर n, ये दिस विल कम फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. बट अगर हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की, तो f ऑफ n का मतलब वही सेम चीज है कि n के प्लेस पे, x के प्लेस पे आपने क्या कर देना, n पुट कर देना, एंड वी आर गेटिंग बोथ द थिंग्स सेम. सो फंक्शन इज सपोज्ड टू बी कंटीन्यूअस एट x टू द पावर n. तो नॉन एग्जिस्टेंस की तो बात ही नहीं है, तो फंक्शन आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 विल बी ऑप्शन नंबर ए. फाइन. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फटाफट से 13 की तरफ. एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल. सर्कल है हमारे पास, क्या सर्कल बनेगा ये, नाउ दिस इज द जनरल इक्वेशन व्हेन सर्कल इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 2. 2 मींस रेडियस, सॉरी 4, रेडियस इज गिवन टू बी 2. सो योर ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, this is 2 comma 0, this is minus 2 comma 0, this will be 0 comma 2 and this will be again 0 comma minus 2. Fine. Now हमें निकालना है 0 से लेके और x equals to 2 के बीच में. Let's suppose this is the line of x equals to 2, यहाँ पे टच करके, and this is your x equals to 0. Clear है ये. Now we need to find out area only in the first quadrant. लिखा हुआ बेटा, मेंशन किया हुआ है, it is lying in the first quadrant, कहीं नहीं निकालना. So we need to find out only this much area. तो कैसे निकालते हैं, फटाफट से निकाल लेते हैं, बहुत सीधी सी बातें, यहाँ से यहाँ ले जाइए. क्या हो जाएगा, इट विल बी इंटीग्रल 0 to 2, और किसका है ये कर्व, किसका है, दिस इज ऑफ व्हाट, दिस इज ऑफ सर्कल. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y dx हो जाएगा, बिकॉज वी आर टेकिंग ऑन द x एक्सिस. सो इंटीग्रल 0 to 2, y का वैल्यू इट विल बी व्हाट, अंडर रूट ऑफ 4 minus x square dx. और जहाँ पे आपका लगेगा स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, आई होप एवरीबडी नोज स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, दिस विल गिव मी व्हाट, we can write this 2 square minus x square, and this is formula is what, you will have x by 2 integral of the same function, sorry, x by 2 into the same function you are given, then plus a square by 2, a square is 4 by 2, and you will have here sine inverse of x by what, x by 2.
इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2। सिर्फ आपने क्या करनी है, वैल्यू पुट कर देनी, पुट करिए जरा। जब इसमें पुट करेंगे ये देगा 0, यहाँ पे पुट करेंगे यू विल हैव 2 साइन इनवर्स ऑफ 1 और माइनस, अब करिए 0 पुट करिए, ये 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, इधर 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो दिस मच यू विल हैव एज योर आंसर। दिस इज 2 इंटू साइन इनवर्स 1 कहाँ पे होता है, पाई बाय 2 पे होता है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, कैंसिल आउट एंड आंसर विल बी पाई ओनली। और पाई किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। आई होप इट इज क्लियर। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सो अगेन इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। आपकी तैयारी चलती रहेगी, मैं आपके साथ हूँ और जस्ट आप जितना आप मेरा साथ दीजिए मैं आपका साथ दूंगी डेफिनेटली। कोई भी डाउट कभी भी किसी भी तरीके का यू जस्ट कॉन्टेक्ट मी, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है आपको, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि भाई 2 लाइन से इक्वेशन अगर पास कर रही है तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा जी, ये फॉर्मूला होता है। कितनी बार बताऊं, आई होप अब ये बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज है, सबको आ गई है, सब अच्छे बच्चे हैं मेरे, ऑल आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स। तो फटाफट से कर लेते हैं। x माइनस x1 कितना देगा ये, दिस विल बी x माइनस 1, इधर वाला x माइनस 2, दिस विल बी x माइनस 3, सॉरी z माइनस 3, x माइनस 1, y माइनस 2 एंड z माइनस 3। नीचे कितना आ जाएगा, इट विल बी 5 माइनस 1, इट विल बी 4 माइनस 2 एंड दिस विल बी 6 माइनस 3। और ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 1 डिवाइड बाई 4, y माइनस 2 डिवाइड बाई 2 एंड इट विल बी z माइनस 3 डिवाइड बाई 3। विच ऑप्शन इज करेक्ट, फटाफट से बता दो। ए बी सी कौन सा आ रहा है, देखो माइनस है यहाँ पे तो ये तो होने से रहा, यहाँ पे प्लस आ गया, ये भी नहीं है। ओनली ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। आई होप इट इज क्लियर। बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स इज दिस, देन द एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। सेकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, बता दीजिए फटाफट से। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर सेकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या बोला उसने, डेरिवेटिव देखो कंफ्यूज नहीं होना, उसने बोला डेरिवेटिव ये है, ठीक है। तो उसने बोला कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। इसका एंटी डेरिवेटिव का मतलब है इसका इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रल ही होता है बेटा जी। और इसका इंटीग्रल क्या होगा, आप बोलोगे क्या मैडम इसका इंटीग्रल तो सेकेंड इनवर्स ही होगा, बिल्कुल होगा। तो ऑप्शन कौन सा लगाओगे, ए लगाओगे, मत लगाना, ए गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी लगाओगे, क्योंकि जब इंटीग्रल लगाते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में आता है, उसके बिना क्वेश्चन अधूरा है। आई बात समझ में। दिस वाज पॉइंट इन क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15 एंड नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, कार्टेशियन दिया हुआ है, वेक्टर निकालना है। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत बहुत सिंपल सी चीज है। कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है। हमारा एबीसी यहाँ पे तो ये तो नीचे हमारा क्या हो गया, एबीसी और डायरेक्शन रेशियोज हो गए। पॉइंट क्या होंगे इसमें से, अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट विल बी 4 माइनस 1 एंड इसको स्टैंडर्ड में लिख लो, इट विल बी z ऑफ माइनस 3। तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा नीचे, ठीक है। सो पॉइंट विल बी 3। और अगर हम वेक्टर की बात करें, वेक्टर बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 3, 2 एंड माइनस 4। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, इक्वेशन विल बी 4i माइनस j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 2j माइनस 4k। कौन सा ऑप्शन ट्रू होने वाला है, फटाफट से बता दीजिए। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन टू मी दिस। एक पैरेललोग्राम दिया है, उसकी क्या दी है आपको, एडजेसेंट साइड दी है बेटा जी, ठीक है। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3k and vector b as you are given as 4j plus 2k. You need to find out area of what parallelogram. क्या होता है area of parallelogram, फटाफट से बताएंगे। area of parallelogram होता है a cross b and its magnitude. You know how to find out a cross b. a cross b फटाफट से कैसे निकालते हैं, निकाल लीजिए फटाफट से। I, j and k. देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है इन पे। It will be 0, it will be minus 3, then 0, 4 and 2. तो i की कंपोनेंट अगर आप निकालेंगे यू विल गेट 12 हियर, j के निकालेंगे यू विल गेट 4 हियर एंड प्लस k के आप निकालिए यू विल गेट 8 हियर। तो आपके पास आ जाएगा 12i माइनस 4j प्लस 8k, ये तो आ गया। बट हमें इसका क्या चाहिए, हमें इसका चाहिए मैग्नीट्यूड। तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 144 प्लस हाउ मच, it will be 16 plus it will be 64
and the option will be how much? It will be what? It will be 2 to 4. और 2 to 4 का मतलब कितना ऑप्शन आएगा? It will be 4 into 4 into 4 into 14. 4 into 4 into 14. So option root of 4 of root 14 will be the correct option. करके देखिए. I think this option will be the correct one for question number 17. Please focus on your calculations. ठीक है, मेरा मत देखिए. Once you understand the question, then try to solve it yourself. चलिए फटाफट से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की. डिग्री ऑफ, ये तो देख के पता चल जाना है, यहाँ पे कुछ भी हो साइन के साथ अगर डेरिवेटिव आ गया ऑप्शन यही करेक्ट होने वाला है. ये मैंने 1000 बार आप लोग को बता लिया है, क्योंकि कभी इस तरीके से साइन e टू द पावर कभी भी डेरिवेटिव साथ में नहीं आता एज इन टर्म्स ऑफ एंगल. फटाफट से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की. असर्शन आपको दिया हुआ है फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2. क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 1 होता है? बता दीजिए. 1 1 होता है? 1 1 एंड ऑन 2 होता है? बिल्कुल नहीं होता. बात ही खत्म हो गई. यहाँ पे असर्शन क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया. चलो इसको भी बात कर लेते हैं रीजनिंग की. रीजनिंग क्या है? फंक्शन इज सेड टू बी 1 1 एंड ऑन 2 इफ ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेज एंड रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू द कोडोमेन. ये बात बिल्कुल सही है. पहले वाला ट्रू हुआ तो रीजन हुआ, पहले वाला हुआ फॉल्स, रीजन हुआ ट्रू, तो ऑप्शन डी विल बी द, डी की सी, यस डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Move on to question number 6. Question number last question of your section A, your MCQ. Cosec inverse is defined as the function whose domain is this and range could be. बिल्कुल हो सकती है ये और ये चीज तो ट्रू है. ये चीज आपको आएगी थियरी क्वेश्चन से. ठीक है. Cosec is bijective, then the intervals this and this are domain and range for so. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. और ये बेटा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका. ये आपके पास कहां से समझ में आएगा? ये आपको समझ में आएगा ITF का, जहाँ आपकी स्टार्टिंग में बुक में थियरी दी हुई है, वहां पे बहुत सारी थियरी दी हुई है. वहां पे आपका जहाँ पे ग्राफ बनता है वहां से ये चीज आपको समझ में आएगी. ठीक है. अगर यहाँ से समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये अब समझाने लायक चीज नहीं है, ये तो नॉर्मल सी चीज है, ट्रू है. ये इसका रेंज यही होता है, इसका डोमेन यही होता है. सो ये ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20. नाउ मूव इनटू सेक्शन बी. एंड नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, वी आर हैविंग टू ऑप्शंस हियर. फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x डॉट log x. तो पहले वाले की अगर बात करें, इंटीग्रल sin x डॉट log of cos x. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन मेथड. क्या करेंगे? cos x को क्या पुट कर दीजिए, put your cos x is equals to t, so you will have minus sin x dx equals to dt. Now your question will become I equals to with negative sign sin x और dx तो क्या बना देगा? dt बना देगा, and you are left with just log of t dt. I hope it is clear. अब क्या करना है इसमें? अब इसमें लगाएंगे क्या? अब लगाएंगे बाई पार्ट्स. कैसे? क्योंकि log t का कोई डेरिवेटिव नहीं होता ना. अप्लाई बाई पार्ट्स मल्टीप्लाइंग विद 1. और आइलेट के हिसाब से क्या होना चाहिए? आइलेट के हिसाब से लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा क्या होगा? Logarithmic will be first function and 1 will be our second function. और सिंपल सी लैंग्वेज अगर बोले तो वही फंक्शन को हम इंटीग्रल का सेकंड फंक्शन लेते हैं जिसका इंटीग्रल इजी होता है. अगर इसका इंटीग्रल इजी होता तो क्या हम log t का इंटीग्रल पहले से ना कर लेते? ठीक है. तो दिस विल बी योर फर्स्ट फंक्शन, दिस विल बी सेकंड. अब इसको सॉल्व करिए जरा. माइनस ऑफ साइन क्या लिखते हैं? कीप योर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ सेकंड t, 1 का डेरिवेटिव विल बी t. नाउ विद इन माइनस साइन इंटीग्रल log t का डेरिवेटिव विल बी first and then multiply with t and dt. Now it will be further t log t minus. Just simplify this. It will be minus t because integral of dt will be t only. And this is last में आ जाएगा plus c. ठीक है. So you will have t log t minus sign के साथ and plus t plus c. But ये इसका ऑप्शन, इसका आंसर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि question was not in terms of t. क्वेश्चन किसके टर्म्स में था? क्वेश्चन वाज इन टर्म्स ऑफ cos एंड sin. तो आपने क्या करना है? cos और sin की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देने वापस से. क्या थी t की वैल्यू? इट वाज cos x. तो पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसका और पार्ट की तरफ. अब क्या करें इसमें? इंटीग्रल ऑफ 3 minus 5 ऑफ sin x डिवाइड बाई cos square x. अगर आप देखें इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं है, जस्ट सेपरेट देम. जस्ट सेपरेट minus 5 sin upon cos square. Just separate that, you will get your answer. 3 कांस्टेंट आगे आ जाएगा. 1 by c, इसका क्या होता है? 1 by
दिस इज 1 by cos square. 1 by cos square means we can write is secant square x dx minus 5 of. अगर एक cos के साथ साइन को लेंगे तो आपके पास आएगा tan और एक जो सिंगल बचेगा नीचे cos उसको हम लिख सकते हैं secant. क्लियर? नाउ व्हाट विल बी द आंसर? आप तो सीधा सीधा है ना. secant square का इंटीग्रल इज व्हाट? इट इज इंटीग्रल ऑफ tan x माइनस, और इसका क्या होता है? दिस इज ऑफ secant x एंड लास्ट में लगा दीजिए प्लस c एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21. बोथ द पार्ट्स वी हैव सॉल्व्ड. आई होप इट इज क्लियर. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ फटाफट से. शो दैट फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग. शो ही करना है, मतलब इसका मतलब ये कि फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग. नो नीड टू चेक इट कि वो होगा कि नहीं होगा, सिर्फ शो करना है. और शो कैसे करते हैं? हम शो कैसे करते हैं? हम ये दिखा देते कि हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो हमारा शो हो गया. क्लियर है? चलिए फटाफट से इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. व्हाट विल बी फर्स्ट डेरिवेटिव? दैट विल बी 12x स्क्वायर minus 36x plus 27. This will be, now we can write this, if I take 3 common, it will be 4x square minus 12x plus 9. And if I am not wrong, this is nothing but 2x minus 3. देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 square, इसको लिख सकते हैं 2x square. So 2x minus 3 का whole square. And if you see this is greater than 0, this will also be greater than 0. So first derivative is what? It is also completely greater than 0. और इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन क्या है हमारा? फंक्शन इज ऑलवेज कीप ऑन इंक्रीजिंग फंक्शन. So this is a increasing function on real numbers. I hope it is clear. So move on to question number 23 फटाफट से. Check if the relation in the set of real numbers is defined by this. तो आपको चेक करने की सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है. थक गए? थकना नहीं है बेटा. देखिए बहुत कम टाइम है, बहुत सारा पढ़ना है, तो थकना नहीं है. मैं भी तो आप लोगों के साथ लगी हुई ना, जैसे कि आप लोगों को, आप लोग जितना पढ़ रहे हो मैं भी आपके साथ उतना ही पढ़ रही हूँ. ठीक है? आपको समझाने के लिए भी मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है कि क्या कुछ छूट ना जाए, आपके साथ कुछ रह ना जाए. ठीक है? क्लियर है? और मैंने पहले ही बोला था, आप जितना पेपर करते हैं ना, वेदर इट इज पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जितना भी आपने किया है, आपका अगर पेपर कंप्लीट हो जाता है, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आप मुझे प्लीज लिख के बता दीजिए दैट यू हैव डन दिस मच ऑफ पोर्शन. सो आई हैव ए फीडबैक कि आपके पास इतना आप लोगों ने कर लिया है. नाउ एवरी बहुत मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ द जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो इतने पे पहुंच चुके हैं. तो मुझे और कितना उनको देने की जरूरत है और कितना टाइम उनको दूर पढ़ने के लिए आगे. ठीक है? वो और आप मुझे अपने डाउट्स बताएंगे. सो आई ऑल्सो वर्क ऑन दैट कि हाउ मच प्रिपरेशन आई नीड टू डू, व्हाट टाइप ऑफ प्रिपरेशन आई नीड टू डू फॉर यू गाइज. क्या चाहिए आप लोगों को और क्या चीज पे आप लैक कर रहे हो अभी, और व्हाट इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट. सो वो सब ना आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, सो दैट आई हैव ए फीडबैक ऑफ दैट, उससे कि मैं चीजों को शायद और बेहतर तरीके से आप लोगों के पास आपको प्रेजेंट कर पाऊं. क्लियर है? सो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ लेते हैं. हमें चेक करना है कि a, b है तो a लेस देन b होगा. आई होप इट इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि सपोज मैंने अगर 2, 1, 2 ले लिया तो 1 लेस देन 2 तो होता है, लेकिन सिमेट्री कहती है कि अगर 1 लेस देन 2 है तो 2 लेस देन 1 भी होना चाहिए. इज इट ट्रू? नो, दिस इज नॉट ट्रू. सो दिस विल नॉट बी सिमेट्रिक. ठीक है? दिस विल नॉट बी सिमेट्रिक. लेट a इज इक्वल्स टू a. हमने 2 एलिमेंट लिए थे यहाँ पे, 1, 2, तो ये हमने एलिमेंट लिए थे, तो दिस विल बी द रिलेशन. चलिए ट्रांजिटिव की अगर बात करें, फिर से वही चीज, 1, 2 लिया और 2 लेस देन 3 लिया. ये वाला ले 2, 1, 2 लेस देन 3, ये तो सिमेट्रिक आएगा. सॉरी, दिस इज सिमेट्रिक बट दिस ट्रांजिट आएगा. ये कहता है कि 1 इज लेस देन 2 है और ये कहता है कि 2 लेस देन 3 है. बिल्कुल ट्रू है. तो कंबाइन करके कहना चाहिए इनको कि 1 इज लेस देन 3. यस, 1 इज लेस देन 3. दिस कंडीशन इज ट्रू. So this will be transitive. So this will be transitive. So this function will be, this relation will not be symmetric, but it will be transitive. ये symmetric नहीं होगा, but transitive होगा. ठीक है? So question number 14. Sorry, not 14, 24. A line makes an angle alpha, beta, gamma with the coordinate axis. Prove that this value is equals to -1. Now we have done this earlier also. अभी भी किया है कि हमारे जो डायरेक्शन क्या होते हैं, कोसाइंस होते हैं. दे आर नथिंग बट cos alpha, cos beta and cos gamma. And you know what is relation between them? Relation कहता है कि if I take cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, if I take square of all the direction ratios and add them, answer is supposed to be equal always. ठीक है? ये हमारे पास relation होता है, well defined relation है this is. Or we can say L square plus M square plus L square because direction cosines are represented by L, M and also. ठीक है? अब we need to find out cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma. हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है.
Now what is formula of cos 2x? In terms of cos की बात करें, we have 4 formulas, but हमें वो चाहिए जो सिर्फ cos में होता है. So what is that? That is 2 cos square alpha minus 1 plus 2 cos square beta minus 1 हो जाएगा इसका, and this will be 2 cos square gamma minus 1. This is equals to what? This is equals to, प्रूफ करना है हमको इसको. दिस क्या है ये? This is equals to minus 1. This we are given. ये भी प्रूफ करना है, तो इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं बार बार. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ, इनको कंबाइन कर लीजिए जरा. विल टेक 2 कॉमन फ्रॉम हियर. यू विल हैव cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा एंड -1 एंड -1. दिस विल गिव मी -3. सो आई लेफ्ट विथ 2 और ये पूरा तो बना देगा 1 और -3 और ये आ जाएगा 2 - 3 विच इज इक्वल टू -1, जो कि हमको प्रूफ करना था. ठीक है. So this is how to solve your question number 24. Just you need to apply your property, you will get your answer. Apply property, apply your formula, आपके पास आंसर आ जाना है सीधा सीधा. Now move on to question number 25. This is one of the trickiest question. Trickiest question. अगर आप बहुत अच्छा से ट्रिक लगेगा इसमें. कैसे लगेगा? अगर आप इसको नॉर्मली करेंगे ना, तो शायद आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है. देखिए, वैसे तो इसका एक और तरीका है करने का, पर वो बहुत लंबा तरीका है जिसमें कि आपको लॉग का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा. बट आई विल सजेस्ट इसको डायरेक्टली देख के कर लीजिए. इसमें ऑर्डर और डिग्री चाहिए आपको. कैसे करना है मैं वो नहीं बता रही आपको, क्योंकि अगर मैंने वो बताया आई थिंक यू विल बी कंफ्यूज फॉर दैट. बट आप इसमें सीधे सीधे ढूंढिए. व्हाट इज फर्स्ट हाईएस्ट डेरिवेटिव? हाईएस्ट डेरिवेटिव इज व्हाट? हाईएस्ट डेरिवेटिव इज डबल डेरिवेटिव. तो ऑर्डर लगाइए यहाँ पे. कितना ऑर्डर लगाइए? 2. और डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा आपका 1. लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता तो आपको इसके पूरे नंबर मिल जाते. ठीक है. लेकिन अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया है, 2 मार्क्स में आया है, तो सिर्फ शायद इतने लिखने का पूरा नंबर ना मिले, बिकॉज दे नीड एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. दे नीड एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. सो आई सजेस्ट कि जस्ट डू दिस, क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन करने बैठे ना आप लोग, तो यू विल बी हाईली डिसअपॉइंटेड. आपको लगेगा कि शायद आपने जो आज तक ऑर्डर डिग्री सीखा है वो कोई मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है. मैं इसका अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के इस क्वेश्चन का मैं आपको दूंगी, सो दैट यू विल बी कंफर्टेबल विद दिस क्वेश्चन. अभी के लिए इतना समझिए कि ऑर्डर विल बी 2 एंड डिग्री विल बी 1 ईयर. फाइन. क्योंकि ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है जितनी बार डेरिवेटिव लिया है, और डिग्री होता है उसी का हाईएस्ट पावर. ठीक है. ये जिसको नहीं पता था, ये इसका एक्सप्लेनेशन है. तो नाउ दिस इज द नेक्स्ट थिंग. नाउ इट डज नॉट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, इट मैटर्स व्हाट आर यू डूइंग. तो ये मत सोचिए बेटा कि मेरे साथ वाला, मेरा दोस्त, मेरी फ्रेंड ये पेपर अभी पेपर नंबर 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है, 1 ही कर रही है, तो मैं क्यों करूं 5, 6, 7. सो इट डज नॉट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, इट मैटर्स व्हाट आर यू डूइंग. ठीक है. तो आप जैसा खाते हैं, आप जैसा पीते हैं, वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट करता है, आपके माइंड पे इफेक्ट करता है. बट आपके साथ वाला क्या कर रहा है, दैट डजंट मैटर. कोई फर्क नहीं पड़ता आपको. ठीक है. आपका किया हुआ आपके साथ रहेगा, उसका किया हुआ आपके साथ, वो आपके साथ नहीं रहेगा, वो उसके साथ ही रहेगा. ठीक है. तो अपने पे फोकस कीजिए, बाकी चीजें अपने आप बेहतर होने लगेंगी. दूसरे पे फोकस करना थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए, फिर आपने जितना करना करते रहना. चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर आपका सेक्शन नंबर सी. ए कॉइन इज बाइज्ड सो दैट हेड इज 3 times एज लाइकली टू अकर एज टेल. नाउ वी हैव ए कॉइन, बाइज्ड कॉइन है, एक साइड हेड है, एक साइड हमारे पास टेल है. सो इफ आई आस्क व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, दिस एवरीबॉडी नोज, दैट इज 1/2, और टेल की अगर मैं पूछूं तो दैट इज आल्सो 1/2. चलिए, इफ ए कॉइन इज ट्वाइस्ड 4 times, कॉइन को हमने कितनी बार ट्वाइस किया है? 2 times किया है. तो अभी तो ये चेंज हो जाने वाला है. कितना? वी हैव कॉइन को हमने कितनी बार किया? कॉइन को हमने किया ट्वाइस. ठीक है. तो ये नहीं होगा. ये वो होता है व्हेन वी आर थ्रोइंग योर कॉइन ओनली वंस. अब हमने टॉस किया है ट्वाइस. तो ट्वाइस का मतलब उसने क्या बोला? हेड इज 3 times as likely to occur. मतलब टेल अगर एक बार आता है तो हेड कितनी बार आता है बेटा? हेड आता है 3 बार. ठीक है. तो अगर मैं अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपसे पूछूं तो कितनी आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो जाएगी 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हो जाएगी 1/4. इसका मतलब ये है कि आपने अगर कॉइन को 2 बार किया तो 3 बार हेड आएगा, कि thrice times as head is 3 times as likely to occur as tail. तो 3 बार अगर हेड आएगा तभी एक बार आपके पास हेड आता है. सो दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल. चलिए, ये तो पता चल गई. नाउ ही इज आस्किंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, hence find the mean of number of tails also.
चलिए, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है, मुझे ये बता दीजिए फटाफट से। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल है, तो एक्स क्या क्या वैल्यूज लेगा। हो सकता है टेल नहीं आ रहा है, हो सकता है एक बार आ रहा है, और हो सकता है दोनों बार टेल आ रहा है। दो बार ही क्यों लिया, क्योंकि वी आर टॉसिंग योर लाइक हमारे वी आर टॉसिंग द कॉइन ट्वाइस, और उसमें भी प्रोबेबिलिटी क्या थी कि 3 बार आने के बाद ही एक ही बार आ सकता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए फटाफट से बढ़ लेते हैं अभी आगे। इसका हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब x का वैल्यू आया हमारे पास 0, और हमारा x क्या आया, x का वैल्यू एक हमारे पास आया 1, और एक हमारे पास x का वैल्यू आया 2। x का मतलब x 0 आने का मतलब क्या है, x 0 आने का मतलब है वी आर गेटिंग ओनली हेड एंड हेड, वी आर गेटिंग ओनली हेड एंड हेड। ठीक है, कोई टेल नहीं है वहां पे, तो इट विल गिव मी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, एंड दैट विल बी दैट व्हाट वी आर गॉट फ्रॉम लास्ट। इट वाज 3/4 and t का था 1/4, so probability of head will be 3/4, it will also be 3/4, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, it will be 9/16 when you are getting 0 head, but if you are getting 1 head, sorry 1 tail, so it will be head tail plus it will be tail and head। ठीक है, अब tail head और head tail है, और how can you write it, head वाला it will be 3/4 into tail वाला 1/4 plus it will be 1/4 into it will be 3/4, so it will be about 3/16 plus 3/16, and this will be 6/16। so this is when you are getting one's head, sorry one's tail, and बार बार head याद आ रहा है। now this is x equals to 2, x equals to 2 means you are getting both the outcomes as tail, so tail का probability will be what, probability of tail into tail, and that will be probability of this into this, and tail का क्या था, this was 1/4 into 1/4, and the answer will be 1/16। this is how to find out probability distribution। अब ये क्वेश्चन अधूरा है, कहाँ किस लिए अधूरा है, बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। टेबल आपने बनानी है जरूर से x and px। so what was values of x, 0, 1 and 2। now 0 पे we are getting 9/16, here we are getting 6/16, and this we are getting 1/16। ठीक है, now this is one of the standard question, और इसमें one of standard चीज होती है कि आपका आंसर ठीक आया कि नहीं आया। what you need to do, जितने भी न्यूमरेटर्स हैं आपको उनको ऐड करके देख लीजिए, अगर वो डिनोमिनेटर के इक्वल आ गए और आंसर 1 आ गया, मतलब आपने क्वेश्चन सही किया, वरना आपने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर दिए पेपर में। ठीक है, अभी उसने हमसे मीन भी पूछा था। मीन क्या होता है, मीन इज नथिंग बट समेशन ऑफ x इंटू योर px। ये होता है कि आपका जो x और px है उनको आपने मल्टीप्लाई कर देता है रिस्पेक्टिवली, 0 का मल्टीप्लीकेशन उसकी प्रोबेबिलिटी से, प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन उसकी प्रोबेबिलिटी से, प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन उसकी प्रोबेबिलिटी से। so this will be your mean, and you will get 6/16 from here, and plus this will be 2/16, and you will get what, you will get 8/16, and answer will be 1/2। 1/2 answer of this question, this will be the mean of your given question। I hope it is clear। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही निकालना था, उसका नंबर ऑफ मीन्स निकालना था टेल का। ठीक है बात, चलिए now move on to question number 27, distance between the lines। this question I have done so many times। हाँ, मैं नहीं करने वाली, ठीक है, I will not do this question। हाँ, अगर आप यहाँ पे देखें, देखिए ये चीज और ये चीज सेम है। what representation we are given, what it represents, it represents that बेटा जी you are given the parallel lines। अगर डायरेक्शन रेशियो सेम है मतलब पैरेलल लाइंस दिए हैं, और फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस का, मैं वो बता देती हूँ, वेक्टर v क्रॉस a2 minus a1 divided by its magnitude, this will be the formula for shortest distance। और b इसमें क्या होगा, b बोलो फटाफट से, b होगा 5i plus 2j plus k। क्या करना है, इस 5, 2 और 1 के साथ i j k लगा देना है, और a2 क्या है इसमें, यहाँ पे a2 बता दीजिए, a2 है ये वाले पॉइंट सेकंड वाले के, इट विल बी i plus 2j plus 3k। ये आपका है a2, और a1 क्या है, a1 है पहले वाला आपका, इट विल बी 4i माइनस j प्लस 0k, क्योंकि z के साथ कुछ नहीं है। तो ये आपके पास वैल्यूज मैंने दे दी, क्रॉस निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकालिए, एंड गेट मी द आंसर। और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए फटाफट से व्हाट आंसर यू आर गेटिंग फॉर द स्टैंडर्ड व्हाट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस बोला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, सो लाइक कर लीजिए वीडियो को फटाफट से, जिस लोगों ने नहीं किया, जो अभी भी आए हैं, जिसने अभी भी देखा पेपर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं फटाफट से। इफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ एबीसी, एबीसी आपको ट्रायंगल दिया, आप कहीं से नहीं बना देनी ऐसे कि कोई भी बना दिया, कुछ भी नाम दे दिया।
नाम तो ट्राइंगल तो बना लो बट नाम कुछ नहीं दे सकते। नाम क्यों नहीं दे सकते? उसने मुझसे पूछा एंगल एबीसी, और एंगल एबीसी क्या है? एंगल एबीसी है एंगल इट इज बिटवीन बीए एंड बीसी। बीए एंड बीसी मतलब सपोज मैंने इसको बी ले लिया तो बीए एंड बीसी हो गया, और हमें निकालना है एंगल एबीसी। एबीसी दिस वी नीड टू फाइंड आउट। सपोज दिस इज इक्वल टू थीटा। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स सपोज दिस इज इक्वल टू थीटा। अब क्या करेंगे फटाफट से, इसमें कैसे निकालते हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? सबको निकालना आता है। इट विल बी नथिंग बट दिस, जो दोनों वेक्टर्स है बीए और बीसी, ये निकालेंगे और डिवाइड बाय क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे इनके मैग्नीट्यूड से। क्लियर है बात? दिस इज हाउ टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ए और बी के आपको अगर आप देखें, आपको क्या दिया? आपको वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। ए का कोऑर्डिनेट है 1 2 3, योर बी इज व्हाट? इट इज -1 0 and 0, and C is what? It is 0 1 and 2. ठीक है। So what will be vector BA? How to find out position vector of BA? निकालना आता है। What? How to? x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1 means position vector of A minus position vector of B. फटाफट से माइनस कर लीजिए, आपके पास आएगा 2i plus 2j plus 3k। ठीक है। इसी तरीके से किसका निकाल लेते हैं? इसी तरीके से BC भी निकाल लेते हैं। BC का निकालेंगे तो कितना आएगा? BC आपके पास आने वाला है फिर से पोजिशन वेक्टर ऑफ C minus position vector of B. If you simplify it, it will be I plus J plus 2K. ठीक है। तो ये दोनों तो हमने निकाल लिए। What we need? We need their magnitude also. Sorry, we need their magnitude also. क्या हो जाएगा इसका magnitude? Magnitude of this will be under root of 4 plus 4 plus 9. That is how much? Root 17. और नीचे वाले का it will give me magnitude of BC will be nothing but equals to 1 plus 1 plus 4. That is equals to root 6. So we have got all the values. Just put all these values in the formula. तो पहले तो क्या करना है? दोनों का डॉट निकालना है। दोनों का डॉट will be nothing but 2 plus 6, और नीचे divide by their magnitude 17 into root 6 and take the modulus sign. नहीं भी लेते हो तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। So cos theta will be equals to what? You will get 10 divided by root 17 into root 6. So थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी cos इनवर्स ऑफ tan डिवाइड, इफ यू मल्टीप्लाई इट विल बी अंडर रूट ऑफ 102. It will be 102 and this will be answer of this question. This is the value of your angle ABC which is in between the vectors BA and BC. I hope it is clear to everyone. Fine. So now move on to question number 29 फटाफट से। y is equals to this, show that dy by dx is equals to this. इजी है, टफ नहीं कह सकते। अगर डायरेक्ट नहीं निकालोगे नॉर्मल तरीके से साइन इनवर्स का निकाल के फिर अंदर बाहर वाले का क्वोशिएंट टूल से, तो थोड़ा टफ पड़ सकता है। क्या करिए इसमें? सीधा सीधा सा पुट योर x इज इक्वल टू साइन थीटा। उससे क्या होगा? आपके पास आएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा। उससे क्या होगा? Now 1 we can write cos square plus sin square. लिख सकते हैं 1 को cos square plus sin square, और sin theta को we can write plus of 2 sin theta by 2 cos theta by 2. Just break your formulas and this will give me nothing but cos theta by 2 plus sin theta by 2 whole square. और यहाँ पे प्लस का साइन था तो प्लस आ जाएगा, और ये माइनस के साइन में सेकंड वाले में इट विल गिव मी माइनस साइन हियर. तो ये क्वेश्चन विल बिकम y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अंडर रूट की बात है तो मैं कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि 2 से अंडर रूट इसकी पावर से कैंसिल हो जाएगा. cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 पहले वाली टर्म से आएगा एंड प्लस cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 विल कम फ्रॉम द सेकंड टर्म. और नीचे ऑलरेडी वी आर गिवन इज डिवाइड बाय 2. यू कैन सिंप्लीफाई दिस. साइन थीटा बाय 2 का साइन थीटा बाय 2 विल कैंसिल आउट और 2 बनेगा आपके पास. नाउ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos थीटा बाय 2, बिकॉज ये दोनों बना के क्या देने वाले हैं, 2 देने वाले हैं और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. नाउ अगर आप देखें बाहर साइन है अंदर कॉस है, कैन वी चेंज? यस डेफिनेटली वी कैन चेंज. दिस इज साइन इनवर्स ऑफ व्हाट वी कैन राइट. कैसे लिख सकते हैं इसको, आता लिखना? यस दिस इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाय 2. ये 10th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है. साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है. एंड दिस विल गिव मी, दिस विल वैनिश और ये बन जाएगा पाई बाय 2. 90 को पाई बाय 2 लिख लेते हैं माइनस थीटा बाय 2. क्लियर है? नाउ क्वेश्चन वाज ऑन नॉट इन टर्म्स ऑफ अगेन थीटा, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं. y इज इक्वल टू व्हाट. नाउ दिस विल बी पाई बाय 2 माइनस 1 बाय 2.
और थीटा का वैल्यू कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा बेटा जी। थीटा विल बी नथिंग बट साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है बात? तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप क्या कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स रख देंगे। ठीक है, नाउ टेक इट्स डेरिवेटिव। अब इसका अगर आप अब नाउ इफ यू आर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 इज एन एंगल, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इट विल गिव मी 0 माइनस 1/2। ठीक है, और इसका क्या होता है 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विल बी माइनस 1/2 और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप देख लीजिए, आपको शायद यही प्रूव करना था। दिस यू नीड टू शो दिस। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 29। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30 फटाफट से। फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मैं इसका सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स बताऊंगी, आप खुद बताएंगे इसमें कैसे होगा। कैसे निकालते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आपको पता है, व्हाट यू नीड टू चेक, जस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव आपको चेक करना होता है। अगर ग्रेटर देन 0 है so this will be increasing, if it is less than 0 it will be decreasing, this you know। ठीक है, this we have done earlier also, अगर मैंने पहले वाले पेपर्स में किया है तो मैं ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाने वाली। एफ डैश कैसे निकालना है आपको, एफ डैश निकालने के लिए यू नो दिस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। आप जैसे कि फर्स्ट को वैसे रखना है आपने, सेकंड का डेरिवेटिव विल बी ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 प्लस, अब आपने क्या करना है, अब आपने दूसरे वाले को वैसे रखना है और इसका डेरिवेटिव जाएगा थ्राइस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और आपने इसको पुट करके इक्वल्स टू 0, मैं x की वैल्यू बता दूंगी, x इक्वल्स टू कितना आएगा, x आपके पास आएगा, एक बार 1 आएगा, एक आएगा 8/5, एक आएगा आपका 2। मीन्स आपका जो नंबर लाइन डिवाइड होगा वो कैसे डिवाइड होगा, कुछ इस तरीके से डिवाइड होगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 पहले वाला ये वाला, फिर 1 से लेके सॉरी 0 इट इज 1 से लेके आपके पास 8/5, द सेकंड विल बी दिस पोर्शन, देन 8/5 से लेके 2 पर एंड देन 2 टू इन्फिनिटी। तो आपके पास 4 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है। आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए, इंटरवल्स लिखिए, यहाँ पे अपना एफ डैश लिखिए, उसके बाद एफ डैश का साइन के आपके पास क्या आ रहा है और अकॉर्डिंगली आप लिखिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से इंटरवल पे कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, बिकॉज वी हैव डन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव डन। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आपने प्रीवियस पेपर्स पढ़े भी हैं कि नहीं पढ़े। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ फटाफट से। डिटरमाइन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन। आई होप दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। कर्व दिया है y इज इक्वल टू x, बता दीजिए फटाफट से ग्राफ किधर बनेगा, y इज इक्वल टू x ग्राफ किधर बनेगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। ये मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया कि जो भी सिंगल होता है विदाउट एनी पावर उसी पे ग्राफ बनता है। x है यहाँ पे तो ग्राफ बनेगा कुछ इधर की साइड। ठीक है, अब उसने कहां से कहां ग्राफ बोला, x इक्वल टू 1 से लेके 4 पे। लेट सपोज दिस इज x इक्वल टू 1 पहले वाला एंड दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू 4, तो ग्राफ हो जाएगा आपका बाउंडेड रीजन विल बी दिस एंड द x एक्सिस नीचे वाला x एक्सिस आपका हो गया। तो कहां से कहां निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ पे, इंटीग्रल 1 से लेके 4 पे। बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है बेटा। इसमें भी क्या करोगे अब, y और dx, y का वैल्यू कितना दे रखा है आपको 1 to 4, y का वैल्यू है कितना, इट इज रूट x dx। ठीक है, रूट x dx का मतलब इट विल बी x टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 2/3 इधर, और पावर हो जाएगी वहां से लेके 1 से लेके 4। सो इफ यू नीड टू सिंप्लीफाई दिस इट विल बी 2/3 और आपके पास आएगा 4 टू द पावर 3/2 माइनस 1, ये आने वाला है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2/3। हाउ कैन यू राइट इट, इसको आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विथ 2/3, देन 2 टू द पावर 3 इट इज 8 माइनस 1, सो इट विल बी 7 इंटू 2 14 डिवाइड बाई 3। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स में इतना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलिए सेक्शन डी की तरफ फटाफट से बढ़ लेते हैं। ए आपको दिया है, ए इनवर्स निकालना आपको। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ करने लायक है नहीं। कैसे निकालते हैं आप, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालना सबको आता है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको शॉर्ट मेथड से भी सिखाया है और लॉन्ग मेथड से भी सिखाया है। उसके बाद आपने निकालना ए इनवर्स। ए इनवर्स का मतलब होता है यू नीड टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट इनटू यू नीड टू मल्टीप्लाई योर एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या आएगा यहाँ पे फटाफट से बता दीजिए, क्या आएगा, कोई बता सकता है सिर्फ फटाफट से देख के, विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिकॉज मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई है। क्या हो जाएगा इसका एडजॉइंट, मैं अगर बताऊं तो कितना आएगा 14 माइनस दिस 1 इज 14, देन यू हैव 11, देन माइनस 3, फिर आपके पास आएगा दिस विल बी 11, देन 4 माइनस 3 एंड इट विल बी माइनस 5 माइनस 3 एंड माइनस 1। दिस विल बी एडजॉइंट। पुट कर दीजिए वैल्यूज को, निकाल लीजिए फटाफट से और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या ये सही है या गलत निकाला है मैंने, इट इज करेक्ट और नो। फटाफट से आप, क्योंकि आपने भी करना है, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन कोई गड़बड़ हो गया। ठीक है, प्लीज कीप इन माइंड आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग नॉट ए मशीन बेटा। ठीक है, मैं भी एक मशीन नहीं हूँ, ह्यूमन बीइंग ही हूँ।
बिकॉज आई बिलीव कि टीचर इज नॉट लाइक टीचर, ठीक है, दैट इज टीचर इज योर टॉर्च बियरर, आपको ही इज योर गाइड, ही और शी इज योर गाइड, आपको गाइड कर सकते हैं, वी कैन गिव यू लाइक सजेशंस, वी कैन टीच यू समथिंग विच यू डोंट नो एंड वी कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू, ठीक है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक होना इज नॉट अ बिग डील, फिर कि टीचर है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन, ये आपका 5 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है, एंड दिस कैन कम आल्सो इफ यू आर हैविंग द स्टैंडर्ड पेपर। तो सबसे आपने पहले क्या करना है, इसका जो तरीका होता है, सबसे पहले डिवाइड योर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर x, बाई cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x से करेंगे, cos टू द पावर 4 से करेंगे, फटाफट से। कुछ जिन लोगों ने ये क्वेश्चन किया हुआ है वो बता देंगे कि cos स्क्वायर से करेंगे, cos पावर 4 से करेंगे, cos पावर 4 से करेंगे, ठीक है, फटाफट से, जो हाईएस्ट पावर होती है उसी से करेंगे। उससे क्या होगा, इंटीग्रल बन जाएगा हमारा, इंटीग्रल 1 बाई cos टू द पावर 4 डिवाइड बाई, दिस विल गिव मी 1 प्लस tan ऑफ 4, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। और इस तरीके से अगर मैं लिखूं तो दिस वी कैन राइट सीकेंट पावर 4, उस सीकेंट को मैं दो तरीके से थोड़ा तोड़ के लिखती हूँ, सीकेंट स्क्वायर इनटू सीकेंट स्क्वायर। क्यों लिखा मैंने, अभी मैं बताती हूँ क्यों लिखा, 1 प्लस, इसको मैं लिख सकती हूँ tan स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 4 है, मैंने क्यों लिखा अभी समझ में आएगा मैं क्यों लिख रही हूँ इसको। देखिए, अगर आप इसको tan स्क्वायर को t पुट करते हैं, सपोज यू पुट योर tan स्क्वायर x इज इक्वल टू t, तो आपको क्या देगा, नॉट tan स्क्वायर, इफ यू पुट tan x इज इक्वल टू t, तो क्या देगा आपको, secant स्क्वायर x dx इक्वल टू dt देगा आपको, ठीक है। इसका मतलब है कि ये आप मिला के यू कैन कंबाइनली राइट दैम dt लिख सकते हैं। लेकिन बेटा इसका क्या, इसका ये बेटा, क्योंकि secant स्क्वायर का फॉर्मूला होता ही 1 प्लस tan स्क्वायर है, होता है, तो व्हाट कैन वी राइट, इसको हम थोड़ा लिख सकते हैं 1 प्लस t स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा 1 प्लस t टू द पावर 4। अच्छा मैम ये तो कर दिया, अब क्या करें, अब बताइए क्या करेंगे। अब अगेन सेकंड तरीका इसका आगे जो करना है, डिवाइड ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई t स्क्वायर। उससे क्या होगा, उससे ये होगा दैट यू विल गेट द इंटीग्रल एज 1 बाई t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई, यू विल गेट 1 बाई t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट तरीका क्या है आगे, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें ये करना है +2 एंड -2, अभी हम बताऊंगी क्यों करते जा रहे हैं, सब तरीके समझ में आएंगे, +2 एंड -2, एंड दिस विल कम फ्रॉम प्रैक्टिस। सी देखिए, अगर आपको लगता है कि आपने एक बार कर लिया, छोड़ दिया, चीजें आपको आ गई, नो, आप डेफिनेटली दूसरे तीसरे दिन सब खत्म हो जाएंगी। सो प्लीज डू कांस्टेंट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मस्ट होती है मैथ्स में, वरना आपको चीजें नहीं आएंगी। इंटीग्रल, नाउ यू हैव इन न्यूमरेटर 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर मैंने क्या किया, +2 और -2 ऐड किया, एंड इफ आई कंबाइन दीज 3 टर्म्स, इफ आई कंबाइन दीज, आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला बनता है t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, और माइनस इस 2 को लिख सकती हूँ मैं थोड़ा कुछ इस तरीके से। अब मैंने क्या करना, अगर आप देखें, अब इफ आई पुट t प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टू u, तो मेरे पास बनेगा t का डेरिवेटिव 1 बाई टी देता है मुझे क्या, माइनस देता है ना, ऊपर माइनस तो नहीं है, तो क्या करना है इसमें माइनस वाले के साथ कंबाइन करना है, इस वाले के साथ कंबाइन नहीं होगा, अब इस वाले के साथ कंबाइन होगा, ठीक है। इसीलिए गलत भी सीखना जरूरी है, बच्चे इसमें ले तो लेंगे, फिर बोलेंगे आंसर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपने t लिया है और 1 बाई टी का डेरिवेटिव माइनस के साइन आता है, लेकिन मेरे पास तो माइनस है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगी, मैं जब 1 बाई टी स्क्वायर और टी स्क्वायर लूंगी तो इसके साथ में कंबाइन करूंगी इस वाले माइनस साइन 2 को, इस -2 को कंबाइन करूंगी और प्लस वाले को इधर रख दूंगी। अब ये बनेगा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं, इट विल बी नाउ a माइनस बी होल स्क्वायर। नाउ पुट t माइनस 1 बाई टी एज u, ये दे देगा 1, और इसका हो जाता है माइनस माइनस प्लस करके 1 बाई टी स्क्वायर, और ये आ जाएगा साथ में dt, और ये इधर दे देगा du, ठीक है बेटा जी। नाउ क्वेश्चन विल बिकम, नाउ ये दोनों मिला के तो क्या बना रहे हैं अभी, माइनस माइनस वो बिकम प्लस, तो ये बना रहे हैं du डिवाइड बाई u स्क्वायर प्लस √2 u स्क्वायर। बात समझ में आती है। नाउ दिस इज द स्पेशल इंटीग्रेशन फॉर्मूला विच इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। आ गया आंसर। दिस इज 1 बाई √2। ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ दो चीजें हैं आपको जो करनी है फॉलो, कि डिवाइड किससे करना है, दोनों बार।
अब u का मतलब क्या था, u वॉज नथिंग बट t माइनस 1/t प्लस c, नीचे था √2 और क्वेश्चन t में भी नहीं था, क्वेश्चन किस में था, क्वेश्चन वाज इन tan x मतलब x में था। सो 1/√2 tan इनवर्स ऑफ, इस tan की जगह क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ tan स्क्वायर, थोड़ा एलसीएम लिख के लिख देती हूँ, tan स्क्वायर माइनस 1 और नीचे आ जाएगा बेटा जी √2 tan x। थोड़ा एलसीएम लेके मैंने रीअरेंज करके लिख दिया चीजों को, तो ये थोड़ी अभी आपको ठीक लगेगी। सो आंसर विल बी 1/2 tan इनवर्स tan स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइड बाय 2 √2 tan x प्लस c। दिस विल बी आंसर। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, दिस कैन कम इन एग्जाम, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। सो वी आर डीलिंग विद द 3 टाइप्स। अगर आप देखें उसने हमसे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी चेक करवा लिया, उसने हमसे सब्स्टिट्यूशन भी चेक करवा लिया, उसने हमसे स्पेशल इंटीग्रेशन भी चेक करवा लिया, ठीक है, एंड हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर वो भी चेक कर लिया। तो एक एक क्वेश्चन में उसने सारी चीजें मेरी इंटीग्रेशन की चेक कर ली। बात समझ में आती है? चलिए फटाफट से बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। नाउ दिस इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि मैं हर बार छोड़ देती हूँ, मैं फिर से छोड़ूंगी इसको और इसको कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि भाई इसका किस पॉइंट पे मिनिमाइजेशन आ रहा है और किस पॉइंट पे नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पेपर, वी आर जस्ट अबाउट टू फिनिश योर सेक्शन नंबर डी, फिर ई बच जाएगा 3 क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का मतलब है सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन है बेटा जी। चलिए सम ऑफ 3 नंबर्स इज व्हाट, x 6 है, मतलब x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू कितना दिया, x प्लस वाई प्लस जेड क्या दिया आपको, 6 दिया। 3 नंबर्स हमने x y z मान लिया। इफ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, लो भाई थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड एड सेकंड टू इट, लो सेकंड को इसमें ऐड कर दिया, तो मेरे पास कितना आता है, 11 आता है। ये मतलब सेकंड इक्वेशन दे दी उसने। बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट डबल ऑफ सेकंड। अच्छा ये है, तो रिप्रेजेंटेशन मतलब ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, एंड द थर्ड विल बी x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। आप लोग इसको देख सकते हैं बेहतर तरीके से। आप लोगों को तो मेरे से ज्यादा आता है ना, मैं तो मतलब मेरे को तो कम ही आता है, मैं भी सीखती रहती हूँ बच्चों से, कुछ अच्छा कुछ बुरा, ठीक है। चलिए मजा आता है, पर मुझे भी इस तरीके से ऑनलाइन में थोड़ा मजा कम आता है, सामने से मुझे मजा ज्यादा आता है, एंड आई थिंक बच्चे भी ज्यादा उतने ही एंजॉय करते हैं। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर लिखते हैं x इक्वल्स टू b। ए हमारा क्या होता है, a इज व्हाट, ऑल द वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x y z विल बी 1 1 1, देन 0 1 एंड 3 एंड 1 माइनस 2 एंड 1, ठीक है। और देन यू हैव x एज x y z, दिस इज मैट्रिक्स मेथड। और भी आपके पास जो इक्वालिटी में चीजें आई हैं वो आपके पास हो जाएंगी दिस वन। अब ये तो आपको निकालना आता है, x इक्वल्स टू a इनवर्स b। अभी इनवर्स निकालना सिखाया पीछे से, इनवर्स निकालिए, व्हाट इज दैट, 1 बाय दिस इनटू इसका एडजॉइंट निकालिए, और जो भी वैल्यूज आएंगी मल्टीप्लाई विद योर p, आपके पास x y z का वैल्यूज आ जाएगा। और फटाफट से फिर से आप मुझे क्या बताएंगे इसका आंसर। समझदार बच्चे हैं, पहले बोल देते मैडम कमेंट्स में, यस ये आप कमेंट्स में बताएंगे कि भाई आपके पास x y z का वैल्यूज क्या क्या है, बिकॉज अननेसेसरली वीडियो को लंबा करने का और टाइम बढ़ाने का ना कोई मतलब नहीं बनता। वो चीजें समझिए जो आपको नहीं आती हैं, जो आती है उसको फालतू में टाइम बढ़ा के कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। सो दिस वाज योर सेक्शन, एंड ऑफ सेक्शन डी। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36 ऑफ योर सेक्शन ई, द थर्ड लास्ट क्वेश्चन। इन ए स्कूल टीचर आस्क्ड ए क्वेश्चन टू 3 स्टूडेंट्स। चलो भाई 3 बच्चे हैं टीचर के पास, एक है रवि, तो मोहित एंड सोनिया। ये सोनिया हर क्वेश्चन में रहती है, मैंने नहीं बना, ठीक है, मैंने नहीं कहा उनको आने के लिए, ये आ जाती है, पता नहीं कहां से आ जाते हैं हर क्वेश्चन। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए क्वेश्चन बाय मोहित इज 30%, कि भाई एक क्वेश्चन है उसको सॉल्विंग इवेंट इवन ले लेते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ले लेते हैं। रवि कितने में करना है, 30% में। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब मोहित जी की है कितनी, दिस इज 25%, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, क्योंकि 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं प्रोबेबिलिटी को, विद मोहित, रवि एंड सोनिया, और सोनिया जी की है 45% रिस्पेक्टिवली, लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग एन एरर, लेकिन भाई हो सकता, अब उसने क्या बोला, हम एरर भी करते हैं, तो ए हमारा कोई इवेंट है जो कि हमारा एरर बेस्ड है, उसमें एरर भी होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में एरर व्हेन इट इज सोल्व्ड बाय रवि, एरर व्हेन सोल्व्ड बाय इवन मतलब रवि, एरर जब सोल्व रवि करता है तो कितना आता है एरर, एरर आता है जी 1% का। लेकिन जब एरर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, व्हेन इट इज सोल्व्ड बाय मोहित, सॉरी नॉट रोहित तमाम तुम्हारा नाम याद आ रहा है, इट इज 1/2%, एंड व्हेन इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बाय सोनिया, this is 2%. If I'm not wrong, I think we have solved this question earlier also. शायद किया है ना,
चलिए कोई बात नहीं, किया भी है तो चलिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज कमिटेड इन सॉल्विंग द क्वेश्चन दैट द क्वेश्चन इज गिवन बाय सोनिया। क्या होगा इसका आंसर? इसका सीधा सीधा सा आंसर दिया हुआ है, इसका बता दिए, फटाफट से बता दीजिए क्या है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एरर इज कमिटेड, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एरर इज कमिटेड और किसके तरफ किसने किया है सॉल्व, किसको? सोनिया ने। सो एरर और किसने किया? सोनिया। और सोनिया की प्रोबेबिलिटी क्या हमने क्या माना? इवेंट माना 3। सो हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ A/3, वो तो हमारे पास निकले हुआ है, दैट इज व्हाट, सॉरी मैंने लिखा नहीं था A/3, दिस वाज 2%, ये तो निकला ही हुआ है। तो 2/100 विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। बात समझ में आ रही है? बहुत सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। सेकंड वाली चीज अब निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी सोनिया सोल्व द क्वेश्चन एंड कमिटेड द एरर, मतलब सोनिया सोल्व द क्वेश्चन एंड कमिटेड द एरर। इसका मतलब है कि सोनिया ने एरर निकाला, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और E3 हमने सोनिया को ले रखा है, तो क्या हुआ कि सोनिया ने सोल्व किया एंड एरर भी आया। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा फटाफट से बताइए। दिस इज नथिंग बट व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/3। ठीक है, आप उल्टा लिख के देखिए ना, A/3 लिख के देखिए, मल्टीप्लिकेशन रूल जो हम लगाते हैं। तो E3 का प्रोबेबिलिटी क्या था? इट इज 45% इंटू दिस इज 2%, 2/100 लिख सकते हैं, दिस इज यहाँ पे भी लिख लेते हैं। सो हाउ मच यूल गेट? यूल गेट 90 डिवाइड बाई विथ 4 zeros, एक कैंसिल करिए, आपका आंसर आ जाएगा 0.009। 0.009 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फटाफट से इसके नेक्स्ट पार्ट के बाद तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल पूछा भाई, टोटल में तो कोई परेशानी नहीं है। कितना हो जाएगा? कितना कितना से देख लो, 31, 25, 12 देख लेते हैं। टोटल हो जाएगा हमारा कितना? टोटल का आंसर 30 इंटू 1% प्लस देन was what 25% into 1/2% plus next was 45 into 2, then it was 45% into 2%। टोटल तो निकालना आता है ना, सिर्फ आपने क्या करना होता है, टोटल में आपने क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना होता है। ये होता है हमारे पास। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा आपके पास? यू विल गेट फ्रॉम हियर व्हाट, फ्रॉम हियर यू विल गेट 3/1000 प्लस यहाँ से आ जाएगा फिर से 3/1000, सिंप्लीफाई करिए, प्लस यहाँ पे आपका आएगा 9/1000। तो अगर आप इसको देखें तो कितना हो गया ये? दिस इज 15, सो 15 डिवाइड बाई 1000, आंसर विल बी 0.0015, नो 0.015, 0.015 दिस विल बी द आंसर। और में भी पूछा है उसने, solution of is checked by the teacher and had some error and find the probability it is not solved by Ravi। मैं निकालती हूँ, it is solved by Ravi, it is solved by Ravi। तो रवि का केस कौन सा है इसमें से? देखो फटाफट से, केस कौन सा है इसका? फर्स्ट वाला मतलब उसका ये वाला केस है, दिस विल बी फेवरेबल, और इसका मतलब है 0.003। टोटल कितना है अभी? 0.015। तो कितना आंसर आता है फटाफट से बता दो? इट इज 0.2। लेकिन उसने सोल्व बाय रवि नहीं पूछा, उसने नोट सोल्व बाय रवि पूछा है। नोट सोल्व बाय रवि, नोट सोल्व बाय रवि का मतलब विल हैव 1 - 0.2। टोटल में से निकाल दो भाई इसको, कितना आंसर आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। अच्छा आ रहा है, मजा आ रहा है ना? चलिए मजा ले लो थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा बोर होने की जरूरत नहीं है। बोर होते हो तो हो जाओ, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा। मैं तुमको पढ़ा के छोड़ूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को ऐसे। चलिए फटाफट से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आर्किटेक्ट है, डिजाइन किया है क्या उसने? डिजाइन किया है गार्डन को सोसाइटी में। द गार्डन इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड बाय ए सर्कल इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर एज शोन इन द फिगर। चलिए जी, उसने एक सर्कल ऐसे बना दिया, एक फिगर दिख रहा है अच्छा खासा आपको। आगे पढ़ लेते हैं थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन। ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन उसने बोला है कि 2x एंड 2y, लेंथ दिया है उसने 2x और ब्रेड्थ बोला है जी सर जी ने 2y ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। तो आपने निकालना है फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। क्या रिलेशन होगा बिटवीन द वेरिएबल्स? बता दीजिए फटाफट से, क्या होगा, क्या रिलेशन होने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पे देखें, अगर ये देखें आपने, उसने ट्राइंगल बनाई है, इन ट्राइंगल OEM,
ओ एम आपके पास दिया है कितना y, और ये क्या 90 डिग्री है ये, तो वी कैन से दैट OE स्क्वायर इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये है। और OE है क्या आपके पास, OE आपके पास देखिए कुछ दिया हुआ था पीछे, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल आपको क्या दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये चीज आपको कितना दिया है, दिस यू आर गिवन 10, सो वी कैन से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, और आंसर हो जाएगा यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 100। पहली चीज तो उसने ये पूछी थी कि x और y के बीच में आपको रिलेशन बताना है, सो दिस इज फर्स्ट पार्ट आंसर, क्लियर, ठीक है। उसने ये रिलेशन ही पूछा था ना। अब आते हैं दूसरी चीज पे, उसने बोला है एरिया, एरिया एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ x, एरिया ऑफ ग्रीन ग्रास, एरिया कैसे निकलेगा, एरिया क्या होगा इसका, क्या हो जाएगा एरिया बताइए फटाफट से, EB इंटू BC, ये रेक्टेंगल है ना, तो कितना हो जाएगा EB इंटू EC, तो कितना EB कितना है हमारे पास 2x है, और BC कितना है 2y है, फिर विल बी 4 ऑफ xy, ठीक है। लेकिन उसने बोला कि जो फंक्शन बनाना है वो बनाना है x में, तो इट विल बी व्हाट 4 ऑफ x, हमने अभी यहाँ से वैल्यू निकाला है, xy का रिलेशन बनाना है, तो क्या निकल जाएंगे, y का वैल्यू विल बी 100 माइनस x स्क्वायर, हो गया पूरा फंक्शन x में, so this will be answer for second part, क्लियर है, दिस इज द सेकंड पार्ट क्लियर। अब बताना है शो दैट एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल्स टू 5√3। चलिए बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की, इसका थर्ड पार्ट में हमको चीजों को करना मैक्सिमाइज, हमने एरिया भी निकाला कितना, दिस 4x रूट ओवर 100 माइनस x स्क्वायर, और हमें ये चीजों को क्या करना है, मैक्सिमम करना है व्हेन x इज इक्वल्स टू 5√2। अब मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ जब इस तरीके से हमारे पास फंक्शन बन जाता है तो इसको थोड़ा ना स्क्वायरिंग कर लो, उससे क्या होगा चीजें थोड़ी सी ना आपके पास जो रूट में ना वो हट जाएंगी। ये ऐसे आया, ऐसे आने के बाद इसको हम a बार मान ले सपोज, ठीक है। a बार का मतलब हमारे पास हो गया 1600 x स्क्वायर माइनस 16 x टू द पावर 4। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालने फर्स्ट क्या होता है, मैक्सिमम क्या करता है, यू सबसे पहले यू नीड टू फाइंड आउट योर फर्स्ट डेरिवेटिव, यू पुट दैट इक्वल्स टू 0, देन यू फाइंड डबल डेरिवेटिव, और x इक्वल्स टू 0 पुट कर यू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। चलिए क्या डेरिवेटिव होगा इसका, 3200x माइनस ये आ जाएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है, यू नीड टू पुट दैट इक्वल्स टू 0। अगर मैंने इसको 0 पुट किया तो आई गेट 3200x इज इक्वल्स टू 64x क्यूब। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, कितना आएगा, ये कटेगा तो आपके पास आएगा x स्क्वायर, और इसको अगर आप काटेंगे तो कितना आएगा, 8 से करिए, सॉरी किससे करेंगे, 4 से 8 से कर लेते हैं, 8 कितना 8 से हो गया, और भी कटेगा, यस ये लो, तो कितना है आपके पास 50 इज इक्वल्स टू यार आपके पास, और x का वैल्यू आएगा √50, √50 को यू कैन राइट 25 इंटू 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 5√2। और अगर आप देखो उसने यही तो बोला था कि एरिया कहाँ है मैक्सिमम, x इक्वल्स टू 5√2 पे, मतलब हमने वो पॉइंट तो निकाल लिया जहां पे वो मैक्सिमाइज देगा मुझे, ठीक है। हालांकि ये प्लस माइनस दो वैल्यू देगा, बट माइनस हम कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज x वी आर डीलिंग विद द लेंथ एंड ब्रेड्थ, दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। सो ये हो गया हमारे पास दिस। नाउ इज टेलिंग मी कि ये चीज क्या होना चाहिए, इट शुड बी मैक्सिमम। फॉर मैक्सिमम यू नीड टू फाइंड आउट योर सेकंड डेरिवेटिव, तो निकालिए इसका सेकंड डेरिवेटिव। देखो चीजें कितनी इजी हो गई हैं जब मैंने इसका स्क्वायर हटा दिया। ये मैं हमेशा बताती हूँ क्वेश्चन में कि अगर कभी भी फंक्शन में आपके पास रूट आ जाए while finding your maximum minima, प्लीज अवॉइड दैट रूट बाय टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। उससे क्या आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो रूट में चलो फिर भी चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाइड आ जाएंगी, बट व्हेन यू टेक द डबल डेरिवेटिव तब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाने वाला है, एंड दिस विल बी टफ फॉर यू इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशंस, एंड आप कहीं ना कहीं फंसेंगे आप। चलिए डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डबल डेरिवेटिव 3200 माइनस 64 इंटू 3 एंड इट विल बी x स्क्वायर। लेकिन वी नीड टू फाइंड दिस एट, हमें ये बताना है कि दिस विल बी मैक्सिमम एट व्हाट पॉइंट, x इक्वल्स टू व्हाट कितना, तो x स्क्वायर ही रख लेती हूँ, 5√2 है ना, चलो यही है, तो इट विल गिव मी व्हाट 3200 माइनस 64 इंटू 3, और x स्क्वायर का वैल्यू कितना था, x स्क्वायर बन जाएगा आपके पास 50, इट विल बी 3200 माइनस कितना हो जाएगा ये, कर लीजिए इसको फटाफट से, 15 है आपके पास, और ये है 64, कितना था आपके पास, फटाफट से बताइए, मैक्सिमम आ रहा है, मिनिमम आ रहा है कि मैक्सिमम आ रहा है, लेसर देन 0 और ग्रेटर देन 0,
वी आर गेटिंग 0, 0 एंड 16 एंड आई थिंक एक और 0 आएगा यहाँ पे. तो यू आर गेटिंग दिस वैल्यू इज नेगेटिव, और नेगेटिव अगर आ रहा है आपके पास मींस दिस इज लेसर देन 0. तो केस किसका हुआ? केस हुआ मैक्सिमा का, और यही प्रूफ करना था कि इट इज गिविंग मी द मैक्सिमम वैल्यू. ये पूछा था शो दैट इट इज द मैक्सिमम, यही था और तो कुछ नहीं था. मैक्सिमम शो कर दिया हमने, बिल्कुल कर दिया. और कुछ निकालना है? कुछ नहीं निकालना, बस इतना ही पूछा था ना. देखो ये प्रूफ कर दिया, रिलेशन हो गया, एरिया हो गया, और वी हैव प्रूव्ड दैट इट इज मैक्सिमम आल्सो व्हेन x इक्वल्स टू 5√2. क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे. अगर लेंथ वगैरह पूछते तो लेंथ वगैरह बता सकते थे. लेंथ वाज 2x एंड ब्रेड्थ वाज 2y. तो सिर्फ आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है. इट विल बी 2 into 5√2, और y के लिए आप वहां पे पुट कर दीजिए निकाल के, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं. ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन. फिर से कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन. एक आर्किटेक्ट डिजाइन से बिल्डिंग फॉर द मल्टीनेशनल कंपनी. द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर रीजन विद अ semicircular ends having the perimeter of 200 meter as shown below. On the basis of above information, you need to what? Find the maximum value of area. चलिए फटाफट से निकालते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, निकल जाएगा. नाउ हमें उसका डिजाइन का फ्लोर का डिजाइन दिया हुआ है एंड पेरीमीटर सपोज टू गिवन अस एज 200 मीटर्स. क्या पेरीमीटर हो जाएगा इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे व्हाट विल बी पेरीमीटर ऑफ दिस डिजाइन? पेरीमीटर ऑफ दिस डिजाइन विल बी x. एक तो ये x आने वाला है x, और ये x आने वाला है. और जो सेमी सर्कल की बात है, दिस विल बी द सेमी सर्कल, तो कितना हो जाएगा? इट विल बी प्लस. और अगर आप देखो दो है, इधर भी है इधर भी है, तो वी कैन से ट्वाइस इनटू क्या होता है पेरीमीटर 2 पाई r होता है, तो 2 पाई. और r का वैल्यू कितना है इसमें? r इज गिवन टू मी व्हाट? r इज गिवन टू मी y/2. तो y/2 दिस विल बी द पेरीमीटर, और पेरीमीटर आपको दे भी रखा है, दिस इज 200. And if you find out this clearly, it will be 2x plus y equals to 200. ये बनेगा कुछ इस तरीके का आपके पास बनेगा पेरीमीटर. लेकिन उसने मुझे पूछा है क्या? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया. मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा इसका? एरिया विल बी दिस. एरिया विल बी व्हाट? एरिया विल बी व्हाट ऑफ दिस? इट विल बी x into y. x into y होगा ना. y ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया. एरिया विल बी x into y. तो व्हाट विल बी दैट? वैल्यू पुट कर दीजिए जरा. x ये हो जाएगा, y का वैल्यू इधर से निकाल लेते हैं, कितना आएगा? इट विल बी 200 माइनस 2x डिवाइड बाई पाई. आई होप इट इज क्लियर. तो a विल बी हमारा, a कितना बन जाएगा? a विल बी 2 बाई पाई, वी कैन से 100 माइनस x. दिस विल बी 2 पाई दिस, सॉरी x भी है साथ में, यहाँ पे x लिख देते हैं. ठीक है, ठीक है. एंड मोर ओवर वी कैन राइट a इज इक्वल्स टू 2 बाई पाई. कांस्टेंट को बाहर रखिए, अंदर शिफ्ट एवरीथिंग इनसाइड, सो दैट हमको डेरिवेटिव लेने में इजी रहेगा. सो दिस विल बी आवर एरिया फंक्शन. सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया. ठीक है, अब ये तो हमने सिर्फ बनाया फंक्शन, हमें निकालना है एरिया का मैक्सिमम वैल्यू. सो वी नीड टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ दिस. सो इट विल बी 2 बाई पाई. डेरिवेटिव विल बी 100 माइनस 2x. ये हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव. नाउ पुट दैट इक्वल्स टू 0. सो विल गेट 100 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, क्योंकि एवरीथिंग विल कम टू द राइट हैंड साइड, विल बिकम 0, और x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से कितना? x आ जाएगा हमारे पास बेटा जी 50. ठीक है, सो एट 50 दिस इज गोइंग टू गिव मी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरिया. ठीक है, तो यहां से हमको मैक्सिमम वैल्यू एरिया की मिलने वाली है. सो एरिया कितना हो जाएगा आपके पास? चलो एरिया बाद में निकालेंगे, पहले डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, मैक्सिमम है कि नहीं है. कितना आता है? 2 बाई पाई. 2 बाई पाई आया था, और फर्स्ट वाला डेरिवेटिव था हमारे पास कितना? डेरिवेटिव था 100 माइनस 2x. अब 100 का तो क्या होने वाला है? 100 तो 0 होने वाला है, और माइनस 2x का होने वाला है -2. ठीक है, और दिस इज ऑल्सो व्हाट? दिस इज इक्वल टू -4 बाई 5. और अगर आप देखें ये भी क्या है? लेसर देन 0 है. लेसर देन 0 का केस है, इसका मतलब एरिया क्या हो गया हमारा? मैक्सिमाइज हो गया है. ठीक है, अब उसने हमसे पूछा क्या? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया पूछा. एरिया है था क्या हमारा? एरिया वाज दिस. एरिया वाज दिस. ये हमारा एरिया था मैक्स. ठीक है, रख देते वैल्यू जरा. 2 बाई पाई, इट इज 2 बाई पाई 100 इंटू 50 माइनस 100 50 स्क्वायर. सो इट विल बी 50 स्क्वायर. कितना आएगा यहाँ से आप निकाल लीजिए. इट विल बी 2 बाई पाई, इट विल बी 5000 माइनस 2500. सो विल गेट 25 इंटू 2, दिस इज
5000 divided by pi meter square. We can say this will be the area, maximum area we have got. ठीक है, this is the find the value of, ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट का आंसर है अभी तक, ये जो किया है पूरा, this is first part answer only. ठीक है, in this part you'll get only the 2 marks. अभी आगे बात की उसने, CEO of the multinational company is interested in maximizing the area of the whole floor including the semicircular ends also. For this to happen, find the value of x. अब ये बंदा पागल हो गया क्योंकि हमारे क्वेश्चन को बढ़ाता जा रहा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा होने वाला है. ठीक है, चलो पागल होने तो अब क्या करें, तो एरिया अब इस बार ए नहीं लेंगे, इस बार बी ले लेंगे. अब बी को क्या किया उसने, अब बी का एरिया क्या हो जाएगा, उसने बोला कि भाई जो हमारे सेमी, इसने रेक्टेंगल वाला तो लिया था, उसने बोला कि जो ये वाला पार्ट है ना साइड वाला, इनको भी लेना है उसको, इसलिए वो पागल हुआ है. तो उसने क्या बोला, इट विल बी ट्वाइस इनटू, 2 है ना, तो सेमी सर्कल का है तो कितना 1/2 पाई आर स्क्वायर मतलब y/2 होल स्क्वायर, और प्लस xy तो आएगा ही आएगा साथ में. सो आपके पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आने वाला है पाई ऑफ y²/4 प्लस xy. ठीक है, ओहो बहुत बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, कॉम्प्लिकेटेड हो तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस और रख लीजिए, बस खत्म होने वाला है. यहाँ पे y का वैल्यू क्या आया था हमारा, y का वैल्यू हमारा क्या था, यहाँ पे रख दीजिए, इट वाज 200 माइनस 2x/पाई, यही था ना, 200 माइनस 2x/पाई, याद है यही था. ठीक है, होल स्क्वायर प्लस x ऑफ 200 माइनस 2x/पाई, दिस वाज द वैल्यू ऑफ आर वाई. ठीक है, आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, तो सिंप्लीफाई करके हम बता देते हैं डायरेक्टली आपके पास कितना आएगा. यू विल हैव 40,000, यहां से 40,000 आ जाएगा ये वाला, और ये बन जाएगा कैंसिल आउट. आपके पास बनेगा 5 4x² और नीचे से आएगा आपके पास पाई, सॉरी 4 पाई आने वाला है. ठीक है, दिस विल बिकम योर 4 पाई. तो b डैश, अब ये आपका फंक्शन आएगा, प्लीज चेक करिएगा, आर यू गेटिंग दिस फंक्शन. ठीक है, प्लीज चेक इट कि ये आपके पास फंक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है. मैंने सिर्फ एज्यूम, मतलब मैंने देख के ही किया है कि इतना आ सकता है. फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आप निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा, दिस 1/4 इज दिस, और यहाँ से वैल्यू आपके पास कितने आने वाले, यू विल गेट द वैल्यू एज -8x. अब पुट दिस इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से x का वैल्यू 0 आने वाला है. x का वैल्यू 0 मतलब 0 पे मैक्सिमम वैल्यू देगा. और डबल डेरिवेटिव की अगर बात कर दें तो 1/4 ऑफ पाई इंटू -8 लेस देन 0 का केस है, इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम एरिया. ये तो मैक्सिमम तो हो गया, इसका मतलब जो हमारा b बनेगा यहाँ पे, b विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 0. दिस विल बी, ये उसने क्या पूछा था हमसे, उसने हमसे ये पूछा था कि वो दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू निकाल ली, क्या आएगी वैल्यू x की वैल्यू आएगी, तो ये हमें क्या देने वाला है, ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है एट x इक्वल्स टू 0. बाकी कितनी देने वाला है क्या नहीं देने वाला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो दिस वाज एंड ऑफ योर पेपर नंबर 7. We have discussed all the questions, so please keep in mind that you have to practice each and every question. और जो मैंने बोला है कि कमेंट्स में बताइए, मतलब आपने बताना है. ठीक है, ऐसा for granted नहीं लेना चीजों को. If somebody is hard working for you, then you also supposed to hard work with me. ठीक है, आपने करना है मतलब करना है. Don't leave. And again, please, if you like this, आपको समझ में आया, like the video, subscribe the channel and share with your friends. जितना आप फैला सकते हैं, जितने बोर्ड्स के बच्चे, जितने भी मैथ्स के बच्चे हैं, जितने को बच्चों को आप दे सकते हैं, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन. सबको साथ में लेके चलिए, चीजें अच्छी होंगी, बहुत आसानी से रास्ता हो जाएगा, कट जाएगा. कहते हैं ना साथ में चलो तो आसानी से चीजें खत्म हो जाती हैं, चीजें आराम से रास्ते कट जाते हैं. सो दिस प्रैक्टिस एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट टाइम विथ पेपर नंबर 8. टिल देन यू कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर. बाय.